Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in the evening, I placed one video regarding SSC notification and its impact on banking selection. On that video, lot of comments are there, and there is a curiosity with such a large number of vacancies. Should we move to SSC, leaving banking competition? I have placed that notification on our Telegram channel. Telegram channel link is available in description. You can go through that notification and see and decide yourself whether as per that syllabus you are comfortable to crack that examination. Then you can think of going towards that direction. But if you think that syllabus is not comfortable for you and the syllabus that is already there in banking is comfortable to you, you can continue with the banking preparation. Definitely when large number of vacancies come from one organization, it definitely impact the another examination. So it has a positive impact on banking exams. The competition will definitely come down. Many candidates will move from banking competition to SSC competition. Whether they are selected or not, that is a different issue. But there is always temptation. When large vacancies are there, when SSC job is there will be temptation, and that's why I told in my previous video, it is going to have a positive impact for banking competitions, because the competition will come down, and this will help the needy candidates. The candidates, those really need the job in banking, they will be definitely benefited. This is my own perception and based on my experience in recruitments that I have seen over the years. Some people are asking, sir, where this 20,000 vacancies are mentioned. If you go through the notification, it is mentioned that these are tentative 20,000. Exact number they will tell later on. So from there, people are picking that 20,000. And another change is that the tier 2 marks will be the final decider. So there is no tier 3 examination. So that is a major change as far as those examinations are concerned. But if you are asking my opinion, whether I should go for SSC or continue with banking, it is your own choice. But I see that some people will shift to SSC, which will ultimately help the serious banking candidates. The mock test that I have suggested you in annual plan, that is useful for banking as well as SSC. So if you are already having the subscription, you can use for SSC exam also. If you are not having this subscription, you can buy, because you will have flexibility to get mock tests for SSC as well as banking. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज SSC का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक गुड न्यूज़ फॉर कैंडिडेट के टाइटल से वीडियो बनाई. अब उस पर काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों का पूछना है कि सर SSC में इतनी वैकेंसीज आ गई हैं तो क्या हम SSC की तरफ चले जाएं. कुछ लोगों ने पूछा ये सर 20,000 कहाँ लिखा हुआ है. कुछ लोगों ने को नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला. तो आपकी सुविधा के लिए ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो बीच में ये बताया गया लगभग 20,000 वैकेंसीज होंगी, पर एक्चुअल वैकेंसीज बाद में बताई जाएंगी. अब मूल प्रश्न ये है कि क्या आपको SSC के लिए जाना चाहिए या बैंकिंग के लिए कंटिन्यू करना चाहिए. इसके लिए मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप पहले नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसका सिलेबस देखिए. अगर आपको लगता है कि जो पेपर उसके अंदर हैं आप क्रैक कर सकते हैं, आप उस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि वो कुछ पेपर ऐसे हैं जिसके लिए अभी आप तैयार नहीं हैं और अभी आप बैंकिंग
का जो पैटर्न है उसके लिए ही तैयार हैं, तो आपको बैंकिंग में ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई हैं या कम है या ज़्यादा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर वैकेंसीज बढ़ी हैं तो रश भी बढ़ेगा वहाँ पे, और रश बढ़ेगा तो कंपटीशन भी बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है वैकेंसी बढ़ गई तो आसान हो गया वहाँ पर। हाँ, इसका पॉजिटिव इफेक्ट बैंक कैंडिडेट्स को जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो फुल फ्लैश तैयारी बैंकिंग की कर रहे थे, अब वो हाफ हार्टेड तैयारी एसएससी की करेंगे और हाफ हार्टेड तैयारी बैंकिंग की करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं बैंकिंग के, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, वो एक ही को फोकस करेंगे। मान लो वो खाली बैंकिंग को फोकस करेंगे, उनका चांस बढ़ जाएगा बैंकिंग जॉब मिलने का। कुछ लोग खाली एसएससी को फोकस करेंगे, उनका चांस बन जाएगा एसएससी में जॉब मिलने का। कुछ दोनों में करेंगे, हो सकता है वो दोनों जगह विफल हो जाए, क्योंकि जो हाफ हार्टेड एफर्ट्स होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको शुरू में ही फैसला करना चाहिए सिलेबस देख के कि किस सिलेबस के लिए आप कंफर्टेबल हैं, किस सिलेबस के एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, कितनी उसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड है। केवल वैकेंसीज बढ़ गई या घट गई वो एक क्राइटेरिया नहीं है, मगर अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखेंगे तो ये आप मान के चलिए, क्योंकि इससे एक असमंजस की स्थिति पैदा होगी। काफ़ी कैंडिडेट डबल माइंडेड हो जाएंगे कि हमें एसएससी में जाना है या बैंकिंग में जाना है। तो इसमें जो सीरियस कैंडिडेट होंगे बैंकिंग के, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक तरफ लगे रहेंगे, उनकी एकाग्रता एक तरफ होगी, तो वो उसको कामयाबी पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ ए गुड न्यूज़, क्योंकि कुछ लोग इससे डिफ्लेक्ट होंगे, कुछ लोग इससे दूसरे रास्ते पे चलेंगे, और हो सकता है वो वहाँ कामयाब हो जाए। ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि भाई कामयाब नहीं होंगे, पर अगर वो असमंजस में रहे कि वो एसएससी को भी ले लिया और बैंकिंग भी साथ ले लिया, तब हो सकता है उनको फेलियर का सामना करना पड़े। उनको निश्चित करना होगा कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है या मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि यदि हम एकाग्र मन से एक तरह के पैटर्न के ऊपर मेहनत करेंगे तो हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। ये डेफिनेट है कि जब वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं कहीं, तो कुछ लोग उसकी तरफ टेम्प्ट होंगे। तो इसीलिए ये सीरियस बैंकिंग कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया है, उसी प्लान के अंदर, एनुअल प्लान के अंदर एसएससी के मॉक्स भी आपको मिल रहे हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी प्लान है, अगर वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो आसानी से एसएससी के मॉक यूज़ कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं वो इस एनुअल प्लान को ले लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर एसएससी का मन बनता है तो एसएससी की तैयारी कर लेना, उससे बैंकिंग का मन बनता है तो बैंकिंग की तैयारी कर लेना। इसमें मैं अपना व्यू आपको नहीं दूंगा, ये आपका अपना व्यू है। आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है, अपनी कैपेबिलिटी देखनी है, सिलेबस देखना है। जिस एग्ज़ाम को आप समझते हैं मैं क्रैक कर सकता हूँ, उस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। यही सलाह मैं देना चाहूँगा। भेड़ चाल में ना पड़े, किसी ने कह दिया उसके पीछे पीछे चल दें, वो मत करना। आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी तैयारी, उसको ध्यान में रख के इसके ऊपर फैसला करना। पर एक निष्कर्ष इसमें निश्चित है कि बैंकिंग कंपटीशन में जो लोग लगे रहेंगे उनको इन वैकेंसीज का डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग जरूर एसएससी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और कुछ लोग दोनों एग्ज़ाम में उलझे रहेंगे। इन दोनों एस्पेक्ट्स का फ़ायदा उन सीरियस कैंडिडेट्स को मिलेगा जो केवल बैंकिंग की तैयारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।